Hello everybody, here we are discussing chapter 4th and topic's name is Principle of Mathematical Induction. We are doing exercise 4.1 related to class 11th and question 4th is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus and so on plus n into n plus 1 into n plus 2. Here we have to find that by the principle of mathematical induction this statement is true or not. So for this what we have to do? We have to take n is equal to 1 first of all in solution. So before this we have to consider it a statement and named it Pn, P of n, that is such that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dash 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 plus n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4. This is our statement. This is our statement. So for this statement now let for n is equal to 1 P1 is our LHS. This is P1 is such that 1 is equal to, see, first term is 1 only, 1 into 2 into 3, that is equal to 3 to the 6. So this part is over. It is the LHS part. Now see our RHS. What is our RHS? In place of n, what we have to place here? In place of n, we have to substitute the value n is equal to 1 there. So it will be 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 upon 4. So now this will become 1 into 2 into 3 into 4 upon 4. So this 4 will be cancelled. So RHS is equal to 6 only, 3 to the 6. See, 1 to the 2, 3 the 6. So now LHS, because LHS is equal to RHS, therefore we can say that P1 is true. Now let n is equal to k, for which Pk is assumed true. मतलब मैंने क्या किया, Pk को ये assume किया कि ये true है, तो Pk मुझे statement पहले लिखना पड़ेगा, P of k, that is such that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus and so on plus k into k plus 1 into k plus 2, that will be equal to k plus 1 and k plus 2 and k plus 3 upon 4. It is our equation 1. This one is equation 1. Now what we have to do? We have to consider, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले P1 को ट्रू प्रूव करते हैं. P1 को ट्रू प्रूव करने के लिए हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं, वो LHS होता है, और वो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आया था यहाँ पर 6 है. ऐसे ही यहाँ n इज इक्वल टू 1 लेकर के RHS सॉल्व करते हैं. तो RHS में 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3 लेकर के हमने इसको सॉल्व किया, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 आया. देन 4 विल बी कैंसल्ड. सो 1 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6. So 6 here LHS is also 6 and RHS is also 6. That's why we can say that LHS is equal to RHS. Because LHS is equal to RHS for n is equal to 1. So that's why we can say that P1 is true. ये P1 ट्रू प्रूव हो जाता है. उसके बाद क्या करते हैं,
n इज इक्वल टू के के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि पी के जो है, पी ऑफ के जो है वो ट्रू है। तो पी ऑफ के इज सच दैट, मतलब यहाँ पर हम n की जगह पर k लिख देते हैं पूरे हमारे स्टेटमेंट में। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इज अज्यूम्ड ट्रू। सो इट इज नेम्ड एज फर्स्ट इक्वेशन। ये जब फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं तो इसके बाद n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। फॉर n is equal to k plus 1, and here one more thing is there where k is any positive integer, k is any positive integer, k जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है यहाँ पर। तो ये आपको पता ही है कि कल मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ n जो है फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर n इज इक्वल टू के, तो फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, सो p ऑफ k प्लस 1 जब हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमको इस टर्म को पूरा, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म को पूरा एज इट इज़ लिखना है इस p के में से, p ऑफ k में से, और फिर इसके बाद एक टर्म आगे भी ले जाना है इसको LHS में, और फिर RHS में यहाँ n की जगह पर k प्लस 1 लिख करके उसको लिख देना है, और फिर LHS लेकर के RHS के बराबर प्रूव करना है यहाँ पर। तो इसके लिए p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल इज सच दैट, p ऑफ k प्लस 1 इज सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1 into k plus 2 plus what we have to do now, in place of n here also we have to write k plus 1, so this will become k plus 1। जब n की जगह पर हम k plus 1 यहाँ पर लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसको एक टर्म आगे बढ़ाना है ना, k plus 1 तक जाना है, तो एक टर्म आगे बढ़ाना है, मतलब यहाँ पर n की जगह पर हम k plus 1 LHS में भी लिख दें और RHS में भी लिख दें। तो k प्लस 1 यहाँ पर k प्लस 1 लिखेंगे n की जगह पर, तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद वाली ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है यहाँ k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 2, तो वो कितना हो जाएगा, k प्लस 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे अब हम, दैट इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ। अब हमको क्या प्रूव करना है, n की जगह पर हमको k प्लस 1 लिखना है, मीन्स k प्लस 1। अब k प्लस 1 में प्लस 1 करेंगे, क्योंकि k n की जगह पर k प्लस 1 लिख रहे हैं, तो k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू k प्लस 2। फिर यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, k प्लस 3 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगेन इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू राइट k प्लस 1, सो k प्लस 1 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू k प्लस 4, एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 4 ओनली। सो दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमको वी शैल प्रूव दिस, ये हमको प्रूव करना है। तो जब हमको ये प्रूव करना है तो इसका LHS लेंगे हम। तो LHS जो है वो क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 है, एंड आफ्टर दैट प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 है, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। दिस ऑल इज आवर LHS पार्ट सी। ये जो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 वहाँ तक लिखा है इसको हमने, मीन्स ये LHS एज इट इज़ यहाँ तक लिख दिया मैंने इसको। और यहाँ तक लिखने के बाद में इस वाले पार्ट को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। कौन सा वाला पार्ट, ये k प्लस 2 पर जो एंड हुआ था। क्यों किया ऐसा, वाई इज इट सो, बिकॉज LHS ऑफ आवर इक्वेशन 1 इज अप टू दिस ओनली। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हम
इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, RHS ऑफ दैट पार्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट नाउ, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 we have to write here by equation 1. By equation 1 what we have done, by equation 1 we have put the value of this complete summation. ये पूरा जो सम है, इस पूरे समेशन का की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 1 से RHS वाला पार्ट लेकर के इसमें पुट कर दिया, और प्लस आफ्टर दैट इस ब्रैकेट के बाद वो जो टर्म्स हैं that will be written in the same manner. So it will become k plus 1, k plus 2 and k plus 3 now. Now what we have to take common from here? Some terms are common here. See, k plus 1 is also at both the places, k plus 2 is also at both the places, and k plus 3 is also. So we can take k plus 1, k plus 2 and k plus 3 common. So now what is remaining? See, k plus 1, k plus 2, k plus 3 is taken out as common. So k upon 4 is remaining. यहाँ पर k upon 4 बचा हुआ है, और यहाँ से तो हमने ये तीनों टर्म्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस 1. अब यहाँ पर हम इसको LCM लेकर के आगे सॉल्व करते हैं. Now it will be equal to k plus 1 into k plus 2 into k plus 3, and in bracket see, LCM of 4 and 1 is 4. So in table of 4 will be in one time only. So 1 into k is k only, plus अब इस 1 से इस 4 को डिवाइड किया तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 का उस ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ, सो इट विल बी k plus 4 upon 4. So now you see the final part after the solution will be k plus 1, k plus 2, k plus 3 and k plus 4 upon 4. See, it is only our RHS for p of k plus 1. This we shall prove. So here we can say that it is equal to RHS because p of k plus 1 is true. अब ये p of k plus 1 ट्रू प्रूव हो गया, क्योंकि इसका LHS लेकर के हम चले थे और इससे RHS लेकर के आए हैं वो वाला. सो दैट इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स p of k plus 1 इज ट्रू. Therefore p of n is true statement. ये ट्रू स्टेटमेंट प्रूव हुआ कैसे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट इज PMI. बट यू शुड हैव टू राइट द कंप्लीट in a complete manner, or you may write complete here only, that principle by the principle of mathematical induction we can say that this statement is true by the principle of mathematical induction. So why by the principle of mathematical induction? Because what is the principle of mathematical induction? P of 1 should be true, then P of k is assumed true, and then P of k plus 1 should also be true. This we have to prove. तो जब P1 ट्रू प्रूव हो जाता है और Pk को हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है, और उसके बाद में उस एजम्पशन से हम P of k plus 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं, आफ्टर दैट वी कैन से दैट Pn is the true statement by the principle of mathematical induction. So this question number 4 is over now. Now see question 5th, by the principle of mathematical induction, here we have to prove 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus and so on
plus n into 3 raised to the power n is equal to 2n minus 1 in bracket, and then 3 raised to the power n plus 1 plus 3 upon 4 is the true statement. This we have to prove. So where for all n is element of capital N, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर में से लिया गया है, it is taken from natural number. So now in solution we have to assume first of all let p of n is such that 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus and so on plus n into 3 raised to the power n is equal to 2n minus 1 into 3 raised to the power n plus 1, 3 raised to the power n plus 1 plus 3 upon 4. Now for let for n is equal to 1, p of 1 is such that 1 into 3 that will be equal to 3 only, and it is also equal to 2 into 1 minus 1 into 3 raised to the power 1 plus 1 plus 3 upon 4. Why is it so? ये हमने LHS लिया जो कि 3 आ गया, 1 into 3 that is 3. ये हमने RHS वाला पार्ट लिया 2 into 1 minus 1 into 3 raised to the power 1 plus 1 that is equal to 2 minus 1 into 3 square plus 3 upon 4. So this we may write 3 square means 9, 9 into 1 because 2 minus 1 is 1, so 9 1 is 9 plus 3 upon 4 means 12 upon 4, so 4 3s are 12, so it is equal to 3 only. See 3 and there also 3, therefore because LHS is equal to RHS now, LHS में हमने क्या लिया था, LHS में इसकी फर्स्ट टर्म ली थी वो 3 के बराबर आ गई थी, और फिर RHS में हमने n इज इक्वल टू 1 रखा और इसको सॉल्व किया तो वो भी 3 आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू. इससे P1 ट्रू प्रूव हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट फॉर n is equal to k, it is assumed that p of k be true, where k is element of any positive integer, it is positive integer, where k is element of positive integer. Now what we can do, in place of n we have to take k throughout the series. So p of k is such that 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus and so on plus n into k into 3 raised to the power k is equal to 2k minus 1. In place of n what we have to write, k. In place of n we have to write k there, so 2k minus 1 into 3 raised to the power k plus 1 plus 3 and in denominator it is 4 only. It is our equation 1. ये हमारी इक्वेशन 1 हमने कंसिडर की. अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखेंगे. सो फॉर n is equal to k plus 1, now we shall prove हमको क्या प्रूव करना है, we shall prove p of k plus 1, p of k plus 1 is such that
is such that we shall prove that p of k plus 1 is such that, क्या करते हैं हम यहाँ इसको एक टर्म आगे तक बढ़ाते हैं LHS को, और RHS में n की जगह पर k plus 1 रख करके RHS वाला पार्ट फिर हमको वो प्रूव करना होता है जो n की जगह पर k plus 1 रखने पर आता है. So for this p of k plus 1 is equal to is such that 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus and so on plus k into 3 raised to the power k plus, अब आपको क्या बताया था मैंने, जब इसको एक टर्म आगे बढ़ाते हैं तो n की जगह पर फिर हमको k प्लस 1 यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस 1. तो एक टर्म आगे बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और इसके साथ में 3 रेज टू द पावर k प्लस 1. दिस शुड बी देयर. मतलब इसको एक टर्म आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर n और 3 रेज टू द पावर n है, तो उसके बाद वाली टर्म क्या होगी, ये k और यहाँ 3 रेज टू द पावर k है, तो इसके बाद वाली टर्म में हम n की जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ. अब अगर मैं इसके RHS को डिस्कस करूं तो मैं इसका RHS आपको सॉल्व करके बताता हूं. n की जगह पर अगर मैं 2 इंटू के प्लस 1 लिखता हूं, देखिए ये 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाता है 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 2k प्लस 1 आ जाता है. ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा 2k प्लस 1. इसको सॉल्व करा, n की जगह पर मैंने क्या रखा k प्लस 1. देखिए ब्रैकेट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ब्रैकेट में मैंने 2 इंटू के प्लस 1 लिखा, माइनस 1 था इसके बाद तो माइनस 1 लिखा, तो वो सॉल्व करने के बाद 2k प्लस 2 माइनस 1 हुआ, देन इट विल बी 2k 2 माइनस 1 इज प्लस 1, सो 2k प्लस 1 इज द ब्रैकेट पार्ट, सो इट इज 2k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव एंड इन इनटू 3 रेज टू द पावर इन प्लेस ऑफ n. हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट k प्लस 1. यहाँ पर भी n की जगह पर हमको क्या लिखना है k प्लस 1 लिखना है, तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा, सो इट विल बी k प्लस 2 एंड देन प्लस 3 विल बी एज इट इज और डिनोमिनेटर में 4. ये हमको प्रूव करना है. सी नाउ वी शैल प्रूव दैट इज ट्रू. इसको हमको ट्रू प्रूव करना है. ये ट्रू प्रूव करने के लिए वी शैल प्रूव दिस ट्रू. सो फॉर दिस वी हैव टू टेक द LHS. इसको ट्रू प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका LHS लेना होगा. तो इसका मैं LHS ले रहा हूँ. इसका LHS देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. जो LHS है वो इसका क्या है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू 3 रेज टू द पावर k इंटू 3 रेज टू द पावर k एंड देन प्लस k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस 1. एंड सो ऑन प्लस k इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 3 raised to the power k plus 1. This is our LHS. So up to here, what we may write? Up to here it is the first equation only. See, LHS of first equation. It is just like this only. ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है LHS में यही सब लिखा हुआ है, जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है. ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन में LHS में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूरा लिखा हुआ है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं इस पूरी सीरीज की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, दैट वैल्यू आई कैन राइट. ये वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि इसके इक्वल है. तो जब मैं इसके इक्वल इस पार्ट को लिखता हूँ, देन दिस विल बिकम 2k माइनस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 एंड इन डिनोमिनेटर 4 इज देयर प्लस, ये तो मैंने ब्रैकेट वाले पार्ट को लिख दिया इससे इक्वेशन 1 से. अब ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस 1, सो इट विल बी k प्लस 1 इंटू
3 रेज टू द पावर k प्लस 1, दिस वी हैव टू राइट, ये हमको लिखना होगा. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू नाउ वी हैव टू टेक समवॉट कॉमन इफ इट इज सो. अगर यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन वाला पार्ट हमको लिखना होगा. द कॉमन टर्म इज व्हाट हियर, और you may take LCM also. After that we will take common. So 2k minus 1 into 3 raised to the power k plus 1 plus 3 plus 4 into k plus 1 into 3 raised to the power k plus 1. और इसका डिनोमिनेटर क्या है पूरे का 4. यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं था, मीन्स 1 था, तो 4 और 1 का LCM हमने 4 लिया, तो ये वाला पार्ट तो एज इट आ जाएगा क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो देन 1 विल बी द रिजल्ट. देन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट टर्म्स. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 दिस कंप्लीट विल बी एज इट इज. तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा. अब 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो 4 का हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया. अब ये दोनों जगह पर चेक कीजिए आप, कुछ कॉमन है क्या यहाँ और यहाँ, ये दोनों टर्म्स जो मैंने अंडरलाइन की. यस ऑफ कोर्स 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ सकता है. तो अगर मैं वो कॉमन लेता हूँ और पीछे उसको लिखता हूँ तो यहाँ से बचा क्या है 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4. ये 4 का मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 4. और इसके इन दोनों टर्म्स के साथ में इनटू में क्या था 3 रेज टू द पावर k प्लस 1, तो 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 इसके साथ मैंने इनटू में लिख दिया कॉमन लेकर के. अब जो बचा वो क्या है प्लस 3. एंड आफ्टर दैट इन डिनोमिनेटर व्हाट इट इज 4. इसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 है. नाउ 2k प्लस 4k विल बी 6k, सो वी मे राइट 6k हियर. एंड देन प्लस 4 माइनस 1, प्लस 4 माइनस 1 इज प्लस 3, एंड 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज ऑलरेडी देयर. 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 उसके साथ इनटू में है प्लस 3, एंड आफ्टर दैट इन डिनोमिनेटर 4 इज देयर. अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो उस 3 को हम अब कॉमन लेंगे. नाउ सी वी कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम हियर. सो इफ वी टेक 3 कॉमन देन इट विल बी 2k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर k प्लस 1. ये देखिए मैंने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन लेकर के उसको पीछे लिखा. इसके पीछे रीज़न क्या है, मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ना आगे, तो इसका RHS मुझे लाना है. तो RHS लाना मीन्स अब यहाँ पर दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर साइड हो जाएगी. यहाँ पावर 1 है और यहाँ k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा. तो ये इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से 3 कॉमन लेकर के उसको पीछे लिखा है. वी हैव रिटन इट आफ्टरवर्ड्स this bracket. So plus 3 and in denominator it is 4. Now 2 into k plus 2k plus 1 and then into 3 raised to the power 1 plus k plus 1. यहाँ पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 1 plus k plus 1 means, and after that plus 3 upon 4 means it is 3 raised to the power k plus 2. So it will be 2k plus 1 into 3 raised to the power k plus 2 plus 3 upon 4. This is only, that's why I have left it this part, because it is the RHS. So we can say that it is equal to RHS. So because now what we can conclude here, afterwards we have to conclude that because P of k plus 1 is also true, P of k plus 1 is true, therefore P of n is true statement. P of n is true statement by principle of mathematical induction. By principle of
mathematical induction. So this question number 5th is now over. Thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Please do study, like this channel, subscribe it and share it as much as possible.